welcome to Supergrads channel. I am Akanksha and I'm here with a very important news and update for you all. So हमारे IPMAT का season has officially begun because IPMAT इंदौर और रोहतक के साथ साथ IIM रांची ने भी अपने application forms आज से ही start कर दिए हैं and this video becomes extremely crucial for you all because it's a form filling video. यहाँ पे हम लोग step by step एक एक चीज देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने IIM रांची का फॉर्म भरा, what things you should keep in mind, what not. So that's why you stick throughout the video ताकि आप लोग अपने छोटी छोटी मिस्टेक्स से बच जाए. So before we begin, सबसे पहले तो आप लोगों को IIM रांची की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, which is this IIM Ranchi IPM 2026. जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, you will get an option, have you registered or will be registering for IPMAT 26 इंदौर के फॉर्म भरे बिना आप ये स्टेप नहीं कर पाएंगे, आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट गो एंड फिल IPMAT इंदौर's फॉर्म. सिंस यू ऑल नो IIM रांची एक्सेप्ट्स IPMAT इंदौर का स्कोर, तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है कि उस फॉर्म को फिल किए बिना यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करेगा IIM रांची. सो 14th March is the last date. So if there is any candidate out there जिन्होंने अभी भी इंदौर का फॉर्म नहीं भरा है, go fill it today so that you can be eligible for IIM Ranchi as well. जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं, of course you will select on to yes. These are some 20-21 instructions that you must read before filling the form. कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है. The very first pointer is the last date to apply for IIM Ranchi is 12th April 2 PM. So आपके पास अच्छा खासा एक सवा महीना है टू फिल द फॉर्म. सो डू नॉट रश इनटू एनीथिंग, डू नॉट मेक मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ बीइंग हेस्टी. आराम से फॉर्म भर सकते हैं आप. ये सारा सब कुछ पॉइंटर्स पढ़ने के बाद एक और पॉइंटर जैसे कि आप यहाँ पे लिख रहे हो, देख रहे हो, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल द IPMAT 26 ID very carefully in the application form. This is the Indoor's application ID that we are talking about. So you must have IPMAT इंदौर का ID handy with you while filling the form, क्योंकि पहला स्टेप ही वो है. So when you will read or go through all these pointers, then you will register yourself. Very first thing, आप अपना email address डालेंगे, password generate करेंगे, which should be within this norm, which is minimum 8 characters, should contain alphanumeric and special characters. जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, you will click on to get OTP. जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे, you will get the OTP on that email address. Then you will fill the OTP here and then you will move on to the first step. So the very first step will be this. ये आप फिल कर चुके हैं, ये भी आप फिल कर चुके हैं. The very first step will be this. तो यहाँ पे कुछ डिमार्केशंस में बटे हुए हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म. द वेरी फर्स्ट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन द सेकंड स्टेप विल बी योर क्वालिफिकेशन, जहां पे आप अपने एकेडमिक डिटेल्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे. देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स डालेंगे कि आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज थे, कितने सब्जेक्ट्स थे. अपलोड में ऑफ कोर्स यू विल हैव टू अपलोड योर फोटो, सिग्नेचर, योर मार्कशीट्स. देन एप्लीकेशन प्रीव्यू, आपका एप्लीकेशन दिखता कैसे है. देन फिनिश में जाके आप लोग अपना पेमेंट करेंगे. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं. जैसे कि आपने देखा, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट IIM Ranchi asks is IPMAT ID, which is IPMAT Indoor's ID, which you must have received or will be receiving once you fill the IPMAT Indoor 2026 form. Then the next thing on the same page will be filling your personal information. आप अपना नेम डालेंगे full. You have to be very sure that you are filling the exact name as it is there in your 10th mark sheet. उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म भरिएगा. Father's name, mother's name, date of birth. Again, date of birth should be very carefully filled, जो आपके 10th के मार्कशीट में है. यहाँ पे बहुत एक्सक्लूसिवली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इंदौर की भी है, which is you must be born on or after 1st August 2006 for general and 5 years relaxation for reserve category. एड्रेस आप लोग यहाँ पे डालेंगे, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ईमेल एड्रेस जो आप ऑब्वियसली डाल चुके हैं, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट इन केस टू बी रेस्ट एश्योर्ड आप डाल सकते हैं. नेशनैलिटी, कैटेगरी में यू विल बी फिलिंग आप कौन से कैटेगरी से हैं, जनरल, OBC, NC, SC, ST. जेंडर,
different abled person if you are or not, yes if you are, no if you are not. Then you will click on to next step after filling all these details. Next step आपका of course आ जाता है filling your qualification details which is your academic background. सबसे पहले 10th तो आपको डालनी है, ईयर ऑफ पासिंग, स्ट्रीम डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स 10th में आप स्ट्रीम न्यूट्रल होते हो, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो यू आर गोइंग टू मेंशन ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव स्टडीड इन 10th, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और संस्कृत और एनी ऑप्शनल अदर सब्जेक्ट दैट यू माइट हैव स्टडीड इन योर क्लास 10th. अब अपना स्कूल का नाम एंटर करेंगे, बोर्ड, वेदर यू आर अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, सीबीएसई स्टूडेंट, आईसीएसई स्टूडेंट और एक्सेट्रा, वो आप डालेंगे. यहाँ पे एंटर परसेंटेज, यहाँ पे सीजीपीए नहीं मांगा है, परसेंटेज मांगा है. सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको सीजीपीए मिला है, वो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, इफ यू आर समबडी हु माइट हैव गॉटन 9 CGPA in your class 10th, तो परसेंटेज के लिए आपको 9 into 9.5 कर देना है, सिंपली आपका परसेंटेज आ जाएगा. ठीक है. एंड 12th का जो यहाँ पे आप पूछा गया है, ये आपको ब्लू में जो लिखा है वेरी केयरफुली आपको रीड करना है. सो यहाँ पे जो लिखा है मैं आपको एक बार रिटरेट कर देती हूँ. सो इट इज रिटन only fill the details of 12th if you have passed your class 12th. तो अगर आप if you are somebody who is still pursuing 12th, आपने या तो अपना एग्जाम दिया होगा या आप अपना एग्जाम दे रहे हो फाइनल, इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक अपना 12th पास नहीं किया है, आपको अपना रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपको ये इंटायर कॉलम्स ब्लैंक छोड़ने हैं, आपको ये फिल नहीं करना है. बट इफ यू आर somebody who have passed class 12th, आपको अपना रिजल्ट मिल चुका है, यू आर अ ड्रॉपर और फॉर एनी XYZ रीजन यू हैव पास्ड योर 12th, आप लोग यहाँ पे तभी डिटेल्स डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे. मूविंग ऑन, इफ यू आर समबडी हु हैव परसूड डिप्लोमा और एनी अदर डिग्री, तो लाइकवाइज आप वो फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑनर्स एंड अवार्ड्स. यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे मैक्सिमम 10 अचीवमेंट्स पूछे गए हैं, विच कुड बी इंटर स्कूल, यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे इंटर स्कूल हो सकता है, कौन से लेवल से आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल यहाँ पे मेंशन्ड है. तो ऐसे आप खुद चूज कर सकते हैं एज पर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स यू वुड पुट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट एट टॉप, देन नेशनल, देन स्टेट एंड देन इंटर स्कूल. तो इस तरीके से आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं मैक्सिमम 10. तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा खासा क्रेडिट कमाया है थ्रू देयर अचीवमेंट्स मस्ट पुट डाउन ऑल देयर क्रेडिशंस. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटोग्राफ, आपकी स्कैंड फोटो यहाँ पे डालनी है. मैक्सिमम साइज 512 KB है. यहाँ पे PDF का भी साइज यही है, फोटो और सिग्नेचर दोनों का स्कैंड का साइज भी यही है. सिग्नेचर ऑफ कोर्स 10th का मार्कशीट आप डालेंगे, 12th का मार्कशीट. 10th का मार्कशीट will be only visible to those who are still in their class 12th, and both the options will be visible to the students who have passed their class 12th. अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिला है 12th का, तो ये वाला ऑप्शन आपको विजिबल नहीं होगा. एनी अदर सर्टिफिकेट, इसका यहाँ पे आप डाल देंगे. मूविंग ऑन, दिस इज द प्रीव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म. तो इस तरीके से आपको फाइनल लुक मिलेगा कि हाउ यू हैव फिल्ड योर एंटायर फॉर्म. बहुत केयरफुली रीड करिए. अगर आपको कोई कुछ ऐसा लगता है दैट यू शुड चेंज समथिंग, गो बैक टू द फॉर्म, तो यहाँ पे प्रीवियस पे आप क्लिक कर सकते हैं. यू कैन गो बैक टू द प्लेस दैट यू वांट द करेक्शन एंड मेक योर रेस्पेक्टिव करेक्शन एंड देन मूव ऑन. जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी प्रोसीडेड टू द पेमेंट मोड, जहां पे यू कैन सिलेक्ट द मोड और द मीडियम दैट यू विश टू कंप्लीट योर पेमेंट विद. मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, NEFT, नेट बैंकिंग. तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालेंगे और यहाँ पे आपकी फीस विल बी 2500. तो आपको 2500 रुपए देने पड़ेंगे.
and then you will receive your intimation through your email और वहीं पे rest of the communication भी होगी, and that's how your entire form will be completed or finished. So this is all that you needed to know about the form filling video. So I am Ranchika, form filling step by step. I hope that this video helps you. If you have still any doubt, as I said, you are more than welcome to post it on our comment section, and we'll be more than glad to resolve them all. I'll see you the next time. Thank you.